માટે આ ત્રાટક અદ્ભુત છે. ભોરમાં સૂર્યોદય હોય ત્યારે સૂર્યનો ત્રાટક કરે, શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્રમાનો ત્રાટક કરે, કે આ આંખની પેરેલલ આ દીપક મૂકીને લગભગ 2 ફીટની દૂરીથી અને આમ ટકટકી લગાવીને બગેર પલક ઝપકે આમ આંખોથી આમ જોવાનું, અને 1-2 મિનિટથી માંડીને આ 5-10 મિનિટ સુધી કરી શકાય છે. આ ત્રાટક આંખ માટે રામબાણ છે. નજરની કમજોરી હોય, કેટરેક હોય કે ગ્લુકોમા હોય કે ઘણી બધી જે પ્રોબ્લેમો છે આંખોની, આ એનાથી મટી જાય છે. આવી રીતે આ જોવાનો. પછી આંખમાં આંસુ આવે તો આમ થોડીક બંધ કરીને અને પછી આમ નીચેની સાઈડ, ઉપરની સાઈડ, જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ અને ગોળ ગોળ આંખોને આમ ફરાવીને આ બધું કરી શકે છે. આ તો થયું આંખ માટે એક ઉપાય. આ બીજો ઉપાય છે. 1 ચમચ સફેદ કાંદાનો રસ, 1 ચમચ લીંબુનો રસ, 1 ચમચ આદુનો રસ. આદુને જ્યારે રસ કાઢીને આમ મૂકી દઈએ ને કાચના વાટલામાં, તો નીચે આમ આ બેસી જાય છે. આ નહીં નાખવાનું, આ નહીં નાખવાનું. તો પછી આ આદુ લીંબુ અને સફેદ કાંદાનો રસ 1 ચમચ, પછી એમાં મધ એ 3 ચમચ નાખી દેવાનું. અને અમે આ નાખેલો છે એમાં મધ. તો આ મધ 3 ચમચ અને 1 ચમચ આ રસ, અને આ તૈયાર થઈ ગઈ દૃષ્ટિ આઈ ડ્રોપ જે અમે આપીએ છીએ. બાકી તો અમે સૌમ્ય પણ આપીએ છીએ. આ તો દૃષ્ટિ આઈ ડ્રોપ છે. આ દૃષ્ટિ બહુ જ તેજ હોય, એકવાર તો આમ લાગે કે આંખો ફોડી નાખશે. અને આ સૌમ્ય છે, એનાથી કશું નહીં થાય, પણ એનાથી ફાયદો પૂરો થાય એના થાય. તો આ તો દૃષ્ટિ અને સૌમ્યની વાત થઈ. તો આ તો એક ઉપાય થઈ. અને બીજો ઉપાય છે ત્રાટકનો, પછી અક્ષિતર્પણનો. તો અક્ષિતર્પણમાં મહાત્રિફલા ઘૃતને આમ આંખમાં નાખવાનું, અને પછી આ જે ચારો તરફ છે ને આ અડદનો લોટ છે, અડદના લોટથી આંખમાં આવી બનાવીને પછી આંખો ખોલવાની, બંધ કરવાની. આ તો અદ્ભુત છે અક્ષિતર્પણ. એ લગભગ અડધો કલાક કરવામાં આવે. પછી આ જલનેતિ, સૂત્રનેતિ અને ત્રિફલા આઈવાસ, આ ત્રણેય પ્રક્રિયાઓ બહુ જ જબરદસ્ત છે. અને આમાં 3 વાતો ખાસ છે. જેને અત્યારે ઓપરેશન થયું હોય, એને દૃષ્ટિ પણ નહીં નાખવાની અને સૌમ્ય જ નાખવાનું. અને તરત આ જલનીતિ સૂત્રનીતિ નહીં કરવાનું. મોઢાથી શ્વાસ લેવાનું, નાકથી નહીં લેવાનું. એક નાકથી લગાડને પછી આ સૂત્રનીતિ નાકમાં નાખ્યું અને મોઢાથી કાઢી નાખ્યું, આમ આવી રીતે. અને આ સૂત્રનીતિ છે. પછી ત્રિફલાથી આઈવાસ છે. આમાં ત્રિફલામાં અમે દારૂ હલ્દી, મુલેઠી અને ગુલાબની પંખડીઓ એ પણ નાખીએ છીએ. અને અત્યારે 2-3 બહુ જ મોટા ઉપાય. આ દૂધને પેસ્ટ, દૂધમાં તો આ નાખી દેવાનું મહાત્રિફલા ઘૃત. આ મહાત્રિફલા ઘૃત આ દૂધમાં નાખીને 1 ચમચી, અને પછી એને પી લેવાનું. સવારે પી શકો કે સાંજે પી શકો. જેને આમ થોડુંક ટેસ્ટી નહીં લાગે તો એમાં થોડુંક મધ નાખી શકાય, મધ નાખીને પીવી શકાય. તો આ બહુ જબરદસ્ત છે. પછી બાદામનો પેસ્ટ કરીને, બાદામને આમ ખાંડીને આનામાં મિશ્રી મેળવીને, બાદામ, મિશ્રી, સોંફ અને મરી, સફેદ મિર્ચ એનો પાવડર કરીને 1 ચમચી આ ખાઈ લેવાનું. આજે
બાદામ, આમાં સાકરકણી, આમાં વરિયાળી અને એ બાદામમાં સાકરકણી, વરિયાળી અને સફેદ મરી. આ બાદામનો પેસ્ટ કરીને એને આમ જ એક ચમચ ખાઈ લેવાનું. બાદામને પેસ્ટ કરીને એમાં થોડો ટેસ્ટી બનાવવાનું હોય તો આમાં મધ નાખીને એને પાણીમાં મેળવીને કે દૂધમાં મેળવીને કે અત્યારે તો શરદીમાં તો તકલીફને આમ જ ખાઈ શકે. એક ખાસ પ્રયોગ છે. આમળા એ લઈને, આમળા અત્યારે પૂરા આખા દેશમાં છે. આ નાના આમળા છે, પહાડમાં હોય, ઉત્તરાખંડમાં મોટા પણ હોય. જેટલા નાના હોય એટલા વધારે સારા. અને આમળાનું ફ્રેશ જ્યુસ, આમળાના જ્યુસમાં થોડુંક પાણી નાખીને એને આમ ફરાઈ દેવાનું. આમળાનો તમે ફ્રેશ જ્યુસ પીઓ, એનો અદ્ભુત લાભ હોય. આ આવળાનું ફ્રેશ જ્યુસ આ પી લેવાનું. અને એક ખાસ પરંપરા છે, પદ્ધતિ છે એ બસ્તીની. એમાં પૂરું તો ટીવી પર નહીં બતાવી શકીએ. આમળાનો રસ હોય, ફ્રેશ આમળાનો જ્યુસ હોય, એમાં સપ્તામૃત લો હોય. સપ્તામૃત લો એમાં હોય, આમળાનો જ્યુસ હોય. એ આઈગ્રીટ બસ્તી કરીને અમે આપીએ છીએ. અને એને એનિમા તરીકે માણસના એનસથી આપવામાં આવે. અને 100 ગ્રામ આ બસ્તી હોલ્ડ કરીને અને એને 20 મિનિટથી માંડીને અડધો કલાક સુધી મૂળ બંધ લગાવીને આ બસ્તી લઈને પછી આ મૂળ બંધ લગાવવું પડે. આમ પેટના અંદર ખીંચવાનું, આમ આ બધું કરવાનું. એનાથી તરત એનાથી ફાયદો થાય આંખોના રોગ. બાકી અનુલોમ વિલોમ કરો સભી. અનુલોમ વિલોમ તો બધાને કરવાનું જ છે. અનુલોમ વિલોમ કરવાનું બધાને. અનુલોમ વિલોમ એ બહુ જ જરૂરી છે આંખ માટે. 3 યોગિક અભ્યાસ આમાં અનુલોમ વિલોમ, શીર્ષાસન અને સર્વાંગાસન. અને જલનેતિ, સૂત્રનેતિ પછી કપાલભાતિ કરવાનું હોય. કપાલભાતિ આમ 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 કરીને તો આખું પાણી નીકળી જાય. પછી અંકુરિત ખાવાનું. આ અંકુરિત બહુ જ જરૂરી છે. આમાં મગ છે, મેથી છે, મોઠ છે, આ બધા અંકુરિત હોય ને એ અંકુરિત. પછી આ જે ડ્રાય ફ્રૂટ છે ને એને સાંજે પાણીમાં પલાળી દેવાનું. આ અખરોટ છે, આ દ્રાક્ષ છે, મુનક્કા હોય આમ જ, આ મુનક્કા છે. એ બધું સાંજે પાણીમાં પલાળીને અને પાણી વધારે પીવાનું. 3 લીટર પાણી પીવાનું. શરદીમાં, શાળામાં, શીત ઋતુમાં આંખના પ્રોબ્લેમ કેમ વધે? લોકો પાણી ઓછું પીવે. 3 લીટર પાણી પીવાનું જ. મૂંઢામાં પાણી ભરીને આંખોને આમ ધોવાનું, જેમ તરફલાથી આઈવાસ કરી રહ્યા છીએ આવી રીતે. અને ગાજર, ચુકંદર, દાડમ, ગાજર, ચુકંદર, દાડમ, એમાં આવળા ને એલોવેરા, આ 5નો જ્યુસ કોઈ પીવી લે તો આંખની પ્રોબ્લેમ રહી જ નહીં. તો એ 5 થી 10 મિનિટ કરવાનું હોય અનુલોમ વિલોમ.
એ અનુલોમ વિલોમ આવી રીતે 5 મિનિટ સુધી કરવાનું હોય, 5 મિનિટ સુધી કરવાનું, 10 મિનિટ સુધી કરી શકાય. ત્રાટક પણ 5 થી 10 મિનિટ સુધી કરી શકાય. અનુલોમ વિલોમ અને અનુલોમ વિલોમ એ શીર્ષાસન કરવું, ત્યાર પછી થોડીક વાર અનુલોમ વિલોમ કરી લે કે થોડી વાર શવાસન કરી લે. મારું તો અભ્યાસ છે એટલે અમે તો સતત શીર્ષાસન સર્વાંગાસન સતત કરીએ છીએ. પણ જે નવા અભ્યાસી છે એ બધાએ એ અનુલોમ વિલોમ પછી થોડી વાર ઊભા રે કે થોડી વાર શવાસન કરી લે કે થોડી વાર અનુલોમ વિલોમ કરી લે, પછી સર્વાંગાસન એ પણ બહુ જબરદસ્ત છે. આ સર્વાંગાસન આ સર્વાંગાસન અને પછી પેટના લીધે પણ, પેટમાં ગરમી હોય, પિત્ત વધી ગયું એના લીધે પણ, સ્ટીરોઇડના લીધે, જંક ફૂડ ખાવાથી એનાથી પણ આંખો ખરાબ થાય, સ્ક્રીન ટાઈમ બહુ હોય એનાથી આંખો ખરાબ થાય. તો પિત્ત નહીં વધે એના માટે શું કરવાનું? એના માટે પેટના અભ્યાસો કરવાના. પેટના અભ્યાસો પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન, સેતુબંધાસન અને બેસીને મંડૂકાસન, શશકાસન, યોગ મુદ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન કરવાના. તો આ અને એક્યુપ્રેશરના પોઈન્ટ છે, પહેલી અને બીજી આંગળીની વચ્ચે, બંને હાથમાં બંને પગમાં આ પોઈન્ટ દબાવવાનો. આ નાનકડા નાનકડા ઉપાયો કરીને મોટી મોટી પ્રોબ્લેમ્સને આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન, આ બધા પેટ સારું થાય તો આંખો સારી થાય. જો એકબીજાની સાથે એનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. આ સેતુબંધાસન, અને પછી મંડૂકાસન, શશકાસન, યોગ મુદ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન. અને આ કરતાં કરતાં જે ભાઈઓ બહેનો પોતપોતાની આંખ સારી કરી છે એના અનુભવ આપણે સાંભળીએ. सबसे पहले माता जी से ही शुरू करते हैं. क्या नाम है माता? किरण. किरण सूरत कहाँ से से? आई हूँ. कहाँ से? सूरत, गुजरात. તો से. ગુજરાતી આવડે છે? हाँ आवड़े છે. હા, તો ગુજરાતીમાં થોડું વાત કરો ને. આંખની પ્રોબ્લેમ શું મટાડી? बोल नहीं सकती. बोल नहीं सकते? चलो कोई बात नहीं, हिंदी में बात करो. हाँ, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या ठीक किया? मेरे आंखों में बहुत खुजली होती थी, घाव हो जाते थे. ओहो, उसके बाद है ना वो ये आपके आसन किए और आई दृष्टि डाला. इंजेक्शन दृष्टि भी बहुत दृष्टि लगे थे. बहुत मेरे जबरदस्त है. हाँ, इंजेक्शन भी बहुत लगे थे आंखों में. किसके लिए इंजेक्शन लगाए थे? ये आंखों में खुजली आती थी, खाज हो ये घाव हो जाते इसलिए ओहो हो. दोनों साइड में लगते थे. फिर अब कब से बंद हो गए? अभी काफी टाइम हो गया, 3-4 साल. ये दृष्टि आई ड्रॉप डाली और क्या क्या किया? अनुलोम विलोम किया अनुलोम और विलोम ये सब आंवला का जूस ये सब पिया. आंखों के लिए जो आपने उपाय बताए वही सब किया. આ બધા ઉપાયો કરીને एकदम स्वस्थ થઈ ગઈ છે બહેન. सब उपाय करके इसकी तो ज्योति लौट आई. अब गजेंद्र तुम्हारा क्या हाल है? हमें जी 12 साल पहले ग्लूकोमा की शुरुआत हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 21 से ऊपर जाएगा टेंशन आपका, तो दवाई शुरू करनी पड़ेगी आपको.
तो स्वामी जी उन्हीं दिनों में मैंने आपके टीवी पे देखा था 12 साल पहले कि दृष्टि आए तो आपके लिए आप बता रहे थे ग्लूकोमा कैटरेक्ट के लिए और चश्मा उतारने के लिए, वो डालनी शुरू कर दी और 3-3 महीने में डॉक्टर साहब मुझे बुलाते थे चेक करने के लिए। तो स्वामी जी 6 और 9 महीने में होते होते टेंशन कम होने लग गया और 1 साल में बिल्कुल ठीक हो गया। प्रेशर बढ़ जाता है आंख में, इसी को ग्लूकोमा कहते हैं। तो गंजेंद्र भाई को प्रेशर कम हो गया और अब कितने दिन से ठीक आंखें? अब तो 12 साल पूरे हो गए। अब स्वामी जी, 12 अभी भी साल मैं पहले की 15 बात। साल से लगातार डाल रहा हूँ दृष्टि आई ड्रॉप, लगातार डाल रहा हूँ 15 साल से। हाँ, कभी बंद नहीं करता कभी भी उसको, लगातार डालता हूँ। 15 साल हो गए पूरे, जब अब साइड ये आई ड्रॉप आया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दृष्टि आई ड्रॉप का, लगातार डाल जो रहा हूँ। शुरू में बताया था। क्या बात है, चलो बहुत आशीर्वाद। आगे भी देना बच्चे को, जो टोपा ओढ़े हुए हैं इनको भी देते हैं। मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन। जी पास में रखो माइक। स्वामी जी मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने बोला था कि आप प्राणायाम मत करना, त्राटक भी। मैंने करीब 15 दिन बाद त्राटक भी शुरू कर दिया, प्राणायाम भी धीरे धीरे, अनुलोम विलोम छोड़ के। तो एकदम से आंखों में रोशनी भी आने लगी और दिखने भी लग गया। क्या हो गया था? मेजर ऑपरेशन हुआ था। ओहो, तो डॉक्टर ने मना किया था, मैंने शुरू कर दिया 15 दिन बाद। 15 दिन बाद त्राटक भी और त्राटक भी और अनुलोम विलोम छोड़ के सारे प्राणायाम शुरू कर दिए। कपाल भाती छोड़ के। सॉरी कपाल भाती। हाँ, कपाल भाती पे थोड़ा आंखों पर प्रेशर आता है। धीरे धीरे किया, लेकिन अनुलोम विलोम कितनी देर करते थे? करीब 1 घंटा। 1 घंटा। तो आंखों की रोशनी कितनी चली गई थी? मतलब ऑपरेशन के बाद एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था और डबल भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, डबल विजन टाइप का। ओहो हो, अब एकदम साफ दिखता है? अब साफ दिखता है। कितनी उम्र है? मेरी 69। 69 की उम्र में देखो आंखों की रोशनी पाली नहीं तो बोले आंख गई तो संसार ही गया है। चल अगले बहन को देना। ये अनुलोम विलोम तो रामबाण है, छोटी छोटी चीजें नमस्ते हैं। स्वामी जी, जी। मैं मीरा महाराष्ट्र से बोल रही। मुझे 30 मई को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी मैं। कोरोना के बाद 15 दिन के बाद दूर का दिखने में मुझे बहुत दिक्कत आने लगी थी। पहले तो मैं टीवी का अक्षर भी पढ़ रही थी, लेकिन बाद में वो पिक्चर भी मैं ठीक से नहीं देख रही थी। ओहो हो। तो ये दिव्य दृष्टि और सौम्या ये डाल के, और आंवले का एक बार जूस। दृष्टि डालती थी, एक बार सौ में। हाँ, एक बार सौम्या और एक बार दृष्टि। अच्छा। और आंवले का जूस पीती थी। ये त्राटक मैंने घर पे नहीं किया, यहाँ पे 20 तारीख को आ गई मैं। तब से मैं यज्ञ में भी समाहित हो रही हूँ और त्राटक भी कर रही हूँ। और अब मुझे आपका चेहरा मैं बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ। पहले देख नहीं पाती थी? नहीं, मेरे घर में तो टीवी इतना नजदीक था, वो भी नहीं दिखता? नहीं दिखता था अरे मुझे, राम। वहाँ का पिक्चर नहीं दिखता था। पढ़ सकती थी, नजदीक की दृष्टि ठीक थी। दूर की दृष्टि कमजोर पड़ गई। हाँ, अभी भी मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन दूर का मुझे बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा था। क्या बात। हाँ, अभी तो आधा 50% से ज्यादा ठीक हो गई हूँ। दृष्टि, सौम्य, अनुलोम विलोम का हाँ, और अभी मैं 15 दिन का मैंने यहाँ का एडमिशन लिया है। तो मुझे पता, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। हाँ। मुझे धुंधला दिखाई देने के बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था वो सिर्फ नंबर बताएंगे, ठीक नहीं करेंगे। तो मैं ठीक होने के लिए तब से 15 जून से मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे आने के लिए, जगह नहीं थी, तो अब आ गई। अब मुझे पता है मैं बाबा जी को स्पष्ट रूप से देख के ही जाने वाली हूँ, तब तक नहीं। चलो बहुत आशीर्वाद। अगले भाई को देना। अब देखो इतना दृढ़ विश्वास, और एक बड़ी बात कही कि वो बता तो देंगे कि ये प्रॉब्लम है, उपचार क्या है, और डायग्नोज भी। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, वो खाली जो फिजिकल डायग्नोज करते हैं, आपकी एनर्जी के लेवल को नहीं मापने के कोई भी इक्विपमेंट उनके पास, तो वो डायग्नोज भी आंशिक है, आधा अधूरा है, अधकचरा है। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस मापने का उनके पास कोई साधन ही नहीं है। चलो बाबा जी ओम चरण स्पर्श 2004 से पतंजलि योग समिति रोहिणी दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। 2009 में योग शिक्षा ली थी आपसे जी। 35 साल पहले मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, माथे में चोट लगी थी, तो बाईं आंख में काफ़ी वीकनेस आ गई थी। 3.5 सिलेंडर चश्मा लगाने लग गया था। ओहो हो। तो अभी अनुलोम विलोम, कपाल भाती और दृष्टि डालते हुए काफ़ी कुछ ठीक हो गया। चश्मे सब फेल हो गए हैं लगभग, सब सब उतर गए। सब उतर गए जी। अब नाम मात्र का ये चल जाता है काम। चलो बहुत आशीर्वाद। ये अनुभव है, અનુભવો સાંભળીને પ્રેરણા જાગે, ઇન્સ્પિરેશન મળે, મોટિવેશન મળે. એટલા માટે આપણે દરરોજ આપણે લોકોના અનુભવનો લાભ આપીએ છીએ. दूसरों के जब ऐसे हम
लाइव एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि इनको ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। पीछे वाले भाई को देना गोमुखासन। ओम महाराज, मैं प्रभु राम छत्तीसगढ़ कांकेर जिला से हूँ। और मेरे एक तो प्रभु राम हमने सुने थे, दूसरे प्रभु राम आ गए। जी 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 जी, कभी कभी भक्तों के बीच भी जाना पड़ता है करके आ गए हम सब। हाँ, तो मेरा क्या है सर, मेरे राइट आँख में जिसको देखता हूँ वही नहीं दिखता है, आजू बाजू दिखता है। अगर उसको हटा देता हूँ उस पल को तो वो दिखने लगता है। अरे राम। तो ये मेरी समस्या थी। तो रायपुर में मैं 4 वहाँ के बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वहाँ पर दिखाए तो बोले एलोपैथिक का डॉक्टर ने कहा कि इसका एलोपैथी में इलाज नहीं है। ये तो कुछ समझदार ये डॉक्टर मेरे लिए तो बहुत ये लगा कि भाई एलोपैथिक डॉक्टर बोला कि एलोपैथी में इलाज नहीं है, तो फिर अब कहाँ जाऊँ। तो फिर 2 ही चीज़ मेरे लिए बचा, एक तो दवा और दुआ। तो दुआ के लिए तो मैंने मंदिरों में भी बहुत जगह गया। अब भगवान की कृपा रही होगी कि उनकी ये से प्रेरणा से ही मैं आपके पास आया और आकर के यहाँ पर मैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। तो जो धुंधला सा दिख रहा था, थोड़ा सा उसमें ऐसा लग रहा है कि विजन कुछ बढ़ रहा है। हाँ, अभी ये अक्षय तर्पण करा रहे हो? अक्षय तर्पण भी करवा लिया हूँ सर जल अभी। नीति, सूत्र नीति, जी 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 जी, वो करता हूँ। त्राटक, हाँ, त्राटक भी हो रहा है। तो अब आ जाएगा मामला। छत्तीसगढ़ के जो कांकेर जिला है सर, वहाँ के आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 दिन तक मैंने अक्षय तर्पण कराया था महात्रिफला घृत से। वहाँ आयुर्वेदिक के डॉक्टर ने कहा था, तो मुझे लगता है कि कुछ रास्ता निकल गया है। नहीं तो डॉक्टर बोल दिए थे इसके अंधा के सिवाय और कोई चारा नहीं अब बोले तो अंधा ही होगा। अब तो बिल्कुल अंधा नहीं होगा। हाँ, तो मैं तो अब ठान लिया हूँ, बाबा जी के पास आ गया हूँ। अब मैं अपनी आँख को बिल्कुल ठीक करने के लिए जो जो उपाय होंगे, वैसे अमल की रसायन, मुक्ता सुक्ति, ये सब आइग्रिटी है ना सबसे अच्छा। हाँ, तो और मैं पपीता लगा लिया हूँ सर अपने घर में, और प्राय 1-2 दिन के बाद पकते रहते हैं, उनको मैं बहुत खाते रहता हूँ। चल, अगली बहन को दे दो। हाँ, भस्त्रिका करो। प्रणाम स्वामी जी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 जरूरी है। जी बहन। अमरावती से हूँ। मेरा नाम कल्पना बैतुले है। मुझे 15 साल से डायबिटीज और बीपी है, उसकी वजह से मेरे आँख में प्रॉब्लम आया था। अरे राम। हाँ, Continue- डायबिटीज भी लंबे समय तक रहता था, आंखों को खराब करता है। कंटिन्यू उससे पानी गिरता था और खुजली बहुत होती थी। मैं LIC ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो मुझे काम करने में बहुत दिक्कत आती थी। मैं सौम्य ड्रॉप डालती रही और यहाँ आके मैंने आई वॉश किया। आई वॉश से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरा डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो गया, बीपी भी नॉर्मल है। ये बड़ी बात है। डायबिटीज के कारण से बहुत लोगों को ये गड़बड़ होता है। पूरा आंखें चली जाती हैं। कुछ लोग तो अंधे ही हो जाते हैं। 2% लोग अंधे हो जाते हैं। 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। वो ठीक कर लिया था। ये मेरा बेटा है सर। हाँ बेटा, ओम स्वामी जी। चलो चलो। कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। मेरा नाम अखिलेश है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। स्वामी जी, मुझे पिछले अगस्त में कोरोना हो गया था, तो डॉक्टरों ने जो दवाइयाँ दिया उससे पेट इतना प्रॉब्लम हो गया, पेट में दिक्कत हो गया, इसकी वजह से मेरे आंखों में कंटिन्यू जलन रहता था। अभी मैं बोला था ना, पेट की गड़बड़ी से आंख की गड़बड़ी होती है, तो लाइव एग्जांपल है जी। पेट से बहुत तकलीफ होता था, आंखों में पढ़ने में भी तकलीफ होता था, कंटिन्यू पानी बहता था। यहाँ पे स्वामी जी आई वॉश किया, आईग्री टैबलेट लिया, यहाँ के डॉक्टर साहब ने दिया, और रोज अनुलोम विलोम करता हूँ, भ्रामरी करता हूँ, उससे बहुत फ़ायदा मिला है। अभी आंखों से जलन भी नहीं होता है, पानी भी नहीं बहता, और पेट भी पूरा ठीक हो गया है। क्या बात आई एम है। टोटली सब हैप्पी नाउ। थैंक यू सो मच बाबा जी। थैंक यू। कारण भी ठीक कर लिया, कार्य भी ठीक कर लिया, कारण का निवारण कर दिया तो रोग का निवारण भी हो गया। बहुत आशीर्वाद बेटा। ओम स्वामी जी, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मुझे आंसू बहुत निकलते हैं, आंसू और खुजली आंखों। उम्र कितनी है? 28 साल। अब किसी को तो ड्राई आंख, किसी को आंखों में आंसू ही बहुत बनते हैं। ये दोनों बीमारी अलग अलग है। और तो खुजली होके पूरा सूज जाते दोनों आंखें। हाँ, तो जैसे खुजली ठीक कर ली ना माता जी ने, ऐसे आपकी भी ठीक हो जाएगी। दृष्टि आई ड्रॉप डालना, हाँ, और सौम्य डाल रहा, हाँ, एक बार दृष्टि डालो, एक बार सौम्य डालो। और विकास नहीं हो रहा मेरा, उम्र शरीर नहीं का? दिखती। हाँ, तो सर्वांगासन, हलासन और सूर्य नमस्कार करना है ना। वजन भी 40 किलो, वजन भी नहीं है। हाँ, उम्र वजन के भी हिसाब कम से नहीं हो रहा विकास। उम्र के हिसाब से अब विकास हो जाएगा। इम्यूनोग्रिड पाउडर खाना, अश्वगंधा शतावर लेना बेटा, और सूर्य नमस्कार 100-200 बार करना। सूर्य नमस्कार कितनी बार? 200 बार। हाँ, और 10-20 भुजंग बार से शुरू कर, धीरे धीरे रोज 10-10 बढ़ाता जा। 10 दिन में हो जाएगा 100 बार, तो 20 दिन में 200 बार हो जाएगा, और तेरा शरीर एकदम पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, करेक्टर भी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने ये जो बॉडी बनाई है ना, ये योग वाली है, जिम वाली नहीं है ये, समझा?
हाँ, अब इसको भी पूछते हैं, बहुत देरी से ने भी अक्षय तर्पण का लाभ लिया है। हाँ? तो अनुलोम विलोम करो सब, बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, ओम। क्या नाम भाई आपका? हाँ, माइक में बोलो। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम महावीर है। हम्म, मेरे आँखों में 1 नंबर 1.5 नंबर चश्मा आ गया था और मैंने अनुलोम विलोम करके और दृष्टि आई ड्रॉप डाल के बिल्कुल ठीक कर ली। और मेरी पत्नी के भी ये समस्या थी, वो भी समस्या दूर हो गई, सबकी समस्या। क्या बात है, कैसे हुई है आँख की समस्या? वैसे पढ़ाई भी करता था तो धीरे धीरे आ गई, फिर योग करने लग गया तो मेरी समस्या ठीक हो गई अनुलोम विलोम खुद की भी दूर कर ली और पत्नी अभी की भी समस्या। पत्नी की भी समस्या दूर कर ली। इसका तो अक्षय तर्पण कराया। श्राद्ध और तर्पण तो बहुत करते हैं, हम अक्षय तर्पण करते हैं। तो આ અક્ષી તર્પણ આંખ માટે, શિરોધારા મસ્તિષ્ક માટે, પછી બસ્તી દુખાવા માટે અને સમસ્ત ત્રિદોષની નિવૃત્તિ માટે, અને સ્નેહન સ્વેદન, સ્ટીમ અને મસાજ એ તો આખા શરીરને ઊર્જા આપવા માટે, પછી રક્તમોક્ષણ, જેના આંખમાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો એના લીચ આપણે કરીએ છીએ, એ પણ આંખ માટે બહુ જબરદસ્ત છે. એવા ઘણા બધા ટ્રીટમેન્ટો છે. આ બધા દરરોજ કરીને અમે કરોડો લોકોને નવદૃષ્ટિ આપી છે. તો આ પણ આ જે બતાવ્યું છે એ બધું ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત, પછી શ્વાસો પર ઓંકારનો ધ્યાન કરજો. આવું ધ્યાન ધરશો તો તમને તમારી દૃષ્ટિ સારી થશે અને અંતઃદૃષ્ટિ, દિવ્ય દૃષ્ટિ પણ તમને મળી જશે. હજારો સૂર્ય જેટલો પ્રકાશ તમારા ભીતરમાં છે. ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, દિવી સૂર્ય સહસ્ત્રસ્ય ભવેત યુગપત ઉત્થિતા યદિ ભાસ સદૃશી સા સાત ભાસ સસ્ય મહાત્મા. આવી દૃષ્ટિ તમારામાં છે તો યોગ કરજો અને દૃષ્ટિથી માંડીને જીવનની સમ્યક દૃષ્ટિ પામજો.